Hello to our class 11 students, and class, I believe that you are doing great. And class, we'll be moving forward with today with features of mixed economy. We are going to do mixed economy. Mixed economy, जैसे कि word से पता चल रहा है, it is going to be mixed. So mixed economy is going to be a mixture of capitalist and socialist economy. Capitalist plus socialist economy. का जो mixture होगा वो क्या होगी? Mixed economy होगी. Here you are going to have private sector as well as public sector. So you are going to have the coexistence of both public and प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हैंडल करेगी, प्रोडक्शन में मदद करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही. एंड प्राइवेट सेक्टर भी क्या करेगी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगी और गवर्नमेंट के अंदर थोड़े बहुत कंट्रोल के साथ दैट इज गोइंग टू आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन. सो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ आपको गवर्नमेंट भी मिलेगी प्रोडक्शन करते हुए एंड प्राइवेट भी मिलेगी प्रोडक्शन करते हुए. सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर. So the first feature of capitalist economy is coexistence of public and private sector. Coexistence of public and private sector. So the first feature says that in this type of economy, in a mixed economy, you'll have the factors of production, the means of production will be owned by public as well as private. Private sector will use the means of production and will work for profit motive and for the welfare of people. Whereas in the case of socialist economy, in the case of the government, their primary motive is going to be public welfare and in secondary motive is going to be profit motive, right? So resources are owned by both, utilized by both take their independent decisions, but the motive is basically primary and secondary can be divided into primary and secondary, that is profit motive and welfare motive. In case of government, it is going to be welfare motive first and secondary it is going to be profit motive. In case of private, it is going to be primary profit motive and then it is going to be welfare. So this is what happened. Both of them use the resources for the production in the best manner, right? Second your feature is coexistence of capitalist and socialist features. Coexistence of capitalist and socialist features, right? So in the case of both, in the case of mixed economy, you are going to have the features of both. मतलब इसमें आपके कुछ तो सोशलिस्ट के फीचर्स होंगे और कुछ किसके होंगे? कैपिटलिस्ट के फीचर्स होंगे. मतलब कुछ चीजें सोशलिस्ट इकोनॉमी की आ जाएगी, मतलब जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस रहेंगे, और कुछ चीजें किसकी आ जाएंगी? कुछ चीजें आपकी आ जाएंगी प्राइवेट इकोनॉमी वाली, मतलब प्रॉफिट मोटिव होगा, वो उनका प्राइमरी चीज प्रॉफिट मोटिव देखना होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत बढ़िया तरीके से किया जाएगा, और बाकी के फैक्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. तो ये क्या मिक्सचर है ऑफ both. So यहाँ पे होगा क्या? A mixed economy combines the features of both capitalist and the socialist economy. It is characterized by the presence of private property and profit motive, whereas on the other hand, welfare government, as far as the government is concerned, government thinks of the welfare of the people, and on the other hand, there is a pressure of economic planning by the government also. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रॉपर प्लानिंग करेगी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्या करेगी? आगे की प्रोडक्शन के बारे में सोचेगी और समझेगी. Next is the economic planning. Economic planning. So in the case of mixed economy, economic planning एक बहुत ही important feature है. इसमें क्या बोला जाएगा? An important feature of a mixed economy system is economic planning. Economic planning is essential to promote the economic growth of the country, to make the proper plan so as the economy can be taken to the path of progress, right? And the entire economy, to regulate the entire economy, has to have coordinate operation of the public and private. अब public और private क्या करें? Public and private proper तरीके से coordinate करें. Coordinate मतलब there should be a proper
इवन कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एक समावेश होना चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि एक इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट भी काम कर रही है और पब्लिक भी काम कर रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को दोनों को एक साथ काम कराना इफ देयर इज नो प्लानिंग. So it's very very important feature of mixed economy that you have the planning also, and planning is basically done just to bring a very good coordination between the public and the private sector, right? Thus economic planning is an important aspect of mixed economy system, but it is not as dominate and comprehensive as in the socialist economic system. जैसे कि socialist economic system में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट में, वो इसके केस में मिक्स्ड इकोनॉमी केस में नहीं होगा. Next is regulation and control of the private sector. Fourth is regulation and control of private सेक्टर. ये अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है. अब प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर को ऐसे ही आप फ्री नहीं छोड़ सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी में. उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना क्या हो जाता है गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है. गवर्नमेंट डज इज गवर्नमेंट कीप्स एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर. उनको रेगुलेट किया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है अलग अलग तरीकों से, ताकि वो क्या करे, प्रॉपर तरीके से काम करे, और सिर्फ ऐसा ही ना हो कि वो लोग प्रॉफिट की मोटिव के बारे में सोचते रहे. तो एक मिक्स इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. सो गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर थ्रू वेरियस पॉलिसीज. ठीक है, ओके. सो थ्रू वेरियस पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर. प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे कि आपकी हो सकती है टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी और अलग तरह की पॉलिसीज, एंटी मोनोपोली पॉलिसीज. द गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर टू so as to get maximum out of it, and it don't want the private sector to exploit the people. Next feature, important feature, the fifth feature of a mixed economy is promotion of social welfare. Promotion of social welfare, right? Social welfare को promote करना is very very important feature. इसमें है क्या कि अब in the mixed economy, private sector and public sector both are working together. You know, government works for the welfare of the people. उनका पहला मकसद क्या होता है, लोगों का वेलफेयर के लिए काम करना. बट ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर के साथ. तो प्राइवेट सेक्टर लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ हो जाता है. द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ एंटायर कम्युनिटी. तो प्राइवेट वाले भी लोगों का भला करें, वेलफेयर के बारे में बात करें, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलानी पड़ती है, जिससे वो क्या करती है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन को रोकती है. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल. गवर्नमेंट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ people, especially the labor class, the weaker section of the society, right? The state provides large employment opportunities to assist the workers. Laws are enacted to protect the interests of the consumers. The government tries to minimize economic and regional inequalities as well. So government has a lot of work to do. Government को ये भी देखना है कि जो regions wise जो disparities है या inequality है, मतलब एक अगर कंट्री में 28 स्टेट्स है तो कुछ अमीर स्टेट्स है, कुछ गरीब स्टेट्स है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये भी नहीं रहने चाहिए. पूरे देश को चलाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का ये अलग एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि वो ये देखें कि प्रमोशन हो रहा है सोशल वेलफेयर का, राइट? नाउ द सिक्स्थ फीचर, द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म, राइट? प्राइस मैकेनिज्म एक दूसरा तरीका है जिसके अंदर फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई क्या करती है, आपके एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है मार्केट में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. तो प्राइस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि विदाउट प्राइस मैकेनिज्म कोई भी इकोनॉमी काम नहीं कर सकती, राइट? सो इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, but not as dominated as in a capitalist economy. However, price mechanism is allowed to function subject to certain regulations through price, ठीक है? But कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस डिसाइड करती है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है, जैसे कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज एंड अदर सच मेजर्स.
फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर केप्ट इन अ लोअर एज। जो एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन, ये लोग परचेज कर सके, इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या रखती है, अपना ध्यान रखती है कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो गरीबों तक भी पहुंचे, तो उसके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आगे आती है। और बाकी चीजों के प्राइसेस कौन कर लेता है डिसाइड? थ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड है, थ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड supply, right? So this is how it happens. Now next is the profit motive. The next important feature is profit motive. This is the another important feature. Now in a mixed economy you will see both the government as well as the private sector working for profit. लेकिन government क्या करती है, अपने profit को बाद में देखती है, पहले वो social welfare को देखती है, but it is not in the case of private sector. So what happens here? Through the public sector is guided largely by the motive of social welfare. Profit motive remains the guide motive for private sector. Profit matters and private sectors go together. However, the private sector cannot maximize the public welfare, but they try to maximize their profit. Private sector तो profit के लिए काम करता है, ठीक है, welfare के लिए काम तो बाद में करेगा, लेकिन government के साथ ऐसा नहीं है. Government has to work for the public welfare, welfare of the people as well as the profit motives. तो दोनों को एक balance बना के चलना पड़ता है. And again, the mixed economy has a very important feature. Government keeps an eye on the working of the private sector. So profit motive, the government has to work for the profit as well as the social welfare. क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, राइट? सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम किया जाए. दो द पब्लिक सेक्टर इज गाइडेड लार्जली बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव रिमेन्स द गाइडिंग मोटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर. प्रॉफिट मोटिव एंड प्राइवेट सेक्टर गो टुगेदर, राइट? द नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम. प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम. प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रीडम में की बात है कि अगर सरकार का कंट्रोल भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम नहीं रहेगा. प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम रहता है, कंज्यूमर्स को फ्रीडम रहता है, वो किस तरीके से चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम. स्कोप ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव बहुत ज्यादा रहता है कि आप प्राइवेट लोग आगे आए और इन्वेस्ट करें, मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव बहुत ज्यादा रहेगा. यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन रहेगा, लोगों को क्या प्रोफेशन चूज करना है, क्या चॉइस है लोगों की काम करने की, ये बड़ा वो रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोगों को कोई रोक टोक नहीं कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते. प्रोड्यूसर जो चाहे वो प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर जो चाहे वो कंज्यूम करे, ठीक है, जिसको जो काम करना है वो काम कर सकता है. ऑक्यूपेशन, हाउएवर दिस इकोनॉमिक फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट. लेकिन ये फ्रीडम जो है ये पूरा पूरा एब्सोल्यूट नहीं है. इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ऐसा भी नहीं है. कुछ चीजें ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए रखी गई तो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है, या आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते प्राइवेट वाले, या प्राइवेट वाले ही प्रोड्यूस करें, सरकार को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली इन मिक्स्ड इकोनॉमी पीपल एंजॉय पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम की भी इंजॉयमेंट है, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए पॉलिटिकल फ्रीडम की भी वो है. तो जब फ्रीडम के बारे में बात आती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करे लोगों को. सो ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैरिट्स. So, merits of mixed economy. merits के बारे में बात करें, अच्छी बातों के बारे में बात करें तो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है. दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अमीर और गरीब के बीच के जो बीच में जो डिफरेंसेस है उन्हें कम किया जाएगा, ठीक है. मतलब देश के अंदर इसके अलावा जो भी आपकी अप एंड डाउन आएंगे, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आएंगे, वो अवॉइड किए जाएंगे. अवॉइडिंग ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जो भी बूम्स और डिप्रेशंस है, जो भी बूम्स और डिप्रेशंस है, अप एंड डाउन कहा जाता है इनको. ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी. ये सारे के सारे अप एंड डाउन ना आए इसके लिए क्या करती है सरकार, काम करती है. इसमें केस में ये अच्छी बात है. एडवांटेज ऑफ मार्केट सिस्टम, देन यू हैव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए होता है
क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग एंड वर्किंग एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर गोइंग टुगेदर, सो दे आर हैव द प्रॉपर वर्किंग स्किल्स एंड प्रॉपर चेक इज ऑल्सो देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है. चेक ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, बहुत इंपॉर्टेंट. चेक ऑफ concentration of economic power. So economic power कहीं एक ही जगह जाके इकट्ठा ना हो जाए, उसको एक चेक किया जाता है. ये बहुत अच्छा फीचर इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो वर्किंग देयर, तो गवर्नमेंट उधर है चेक करने के लिए. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम is able to keep a check and concentration of economic power. Monopolistic control of industries and their exploitative tendencies are curbed. At the same time, inequality of income is kept under check by the government through the use of progressive taxation. The government also provides equal economic opportunity to people. मतलब ये है कि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट भी काम कर रहा है, पब्लिक भी काम कर रहा है. एंड यू नो कि प्राइवेट वाले यूजुअली क्या करते हैं, दे एक्सप्लॉइट द पीपल बिकॉज द प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. तो वो इसको एक्सप्लॉइटेशन करके भी कितना चाहते हैं. तो इसके लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी हु स्टैंडिंग, द गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग टू चेक ऑल द मोनोपोली और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि सारी की सारी पावर एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जमा हो जाए. तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग तरीकों से क्या करती है, चेक रखती है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम. पीपल को क्या मिलता है यहाँ पे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है. मतलब ये है कि जहां तक इकोनॉमिक की बात है तो आप इकोनॉमिक फ्रीडम तो आपको मिल रहा है. मतलब आपको प्रोडक्शन क्या करना है, कंजप्शन क्या करना है, ये सबका फ्रीडम तो आपको मिल रहा है. इसके साथ में आपको पॉलिटिकल फ्रीडम भी है. दैट मीन्स कि यू नो कि आप पॉलिटिकली आप किस तरह एक्टिव रहेंगे, आप देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिटिक्स में किस तरह से किसको वोट देना चाहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी पॉलिटिक्स को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के क्या बहुत ज्यादा फ्रीडम रहता है. एट द सेम टाइम द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम ऑल अलाउज सिविक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू द पीपल. ठीक है, जो भी वो जिस तरह से भी पॉलिटिकल चीजों को प्रमोट करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो चिल्ड्रन, आई बिलीव दिस इज इनफ फॉर यू टुडे, and we'll be moving to the next video and we'll be taking up another topic in the next video. Till then, take care of yourself, stay healthy.